Namaste friends. Let us discuss the further part of chapter wave optics as per 12th standard Maharashtra board syllabus. In the last lecture we have completed up to Huygens principle and Huygens construction of spherical and plane wavefront. Now let us discuss reflection of plane wavefront. Reflection of plane wavefront on the basis of reflection of plane wavefront on the basis of Huygens wave theory of light. On the basis of Huygens wave theory of light. ठीक है, तो लाइट का रिफ्लेक्शन स्टडी करना है ऑन द बेसिस ऑफ Huygens wave theory. ठीक है, now here we have to use Huygens principle to explain the reflection of plane wavefront. So let us draw a diagram. Suppose this is the plane reflecting surface. For example, a plane mirror denoted by x dash. Now let us draw plane wavefront incidenting on this surface. These are the two parallel rays. This is a plane wavefront AB, okay, bounded by two parallel rays PA and QB. These oblique lines indicate successive positions of plane wavefront. As soon as wavefront reaches the point A will act as a secondary source of light. But how much is the distance covered? In the time t when wavefront reaches from B to C, that BC distance is equal to speed of light into time. Speed of light generally denoted by c in air medium. Time is t. So BC distance is Ct. In the same time, the secondary wave starting from the point A will have cover distance equal to BC. Why that distances are equal? BC distance कौन से मीडियम में? एयर मीडियम. और B पॉइंट एंड A पॉइंट दोनों सेम फेज में, लेकिन B ए आगे ट्रेवल कर रहा है यहाँ तक C तक एयर मीडियम. The secondary waves emitted from A, they are also traveling in previous air medium because surface is reflective. ये फिर से अंदर तो नहीं जाने वाले, रिफ्लेक्टिव सरफेस है, प्रीवियस मीडियम में रिफ्लेक्शन आने वाला है. तो हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जैसे ही वेवफ्रंट ए पॉइंट को टच कर रही है तो सेकेंडरी सोर्स बन रहा है, सेंडिंग आउट सेकेंडरी वेव. दैट सेकेंडरी वेव्स कवर सेम डिस्टेंस BC in the time interval t. In that time wavefront reaches from B to C. So taking distance BC as the radius, तो BC डिस्टेंस आपको रेडियस कंसिडर करना है. टेकिंग BC डिस्टेंस एज रेडियस एंड A पॉइंट एज अ सेंटर, ड्रॉ द हेमिस्फीयर. इस तरह से ऐसा हेमिस्फीयर आधा स्फीयर बना के उसे ऐसा डैश 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 कर दो ऐसा. ठीक है, ड्रॉ द नॉर्मल एट द पॉइंट ए. ए पॉइंट के लिए नॉर्मल बना दो.
This is the normal at the point A, denoted by MA. Now, draw the tangent from this point C to this hemispherical surface. This is the tangential surface. Let us give the label D. This CD tangent drawn to this hemisphere will represent reflected wavefront. तो ये बन गए इंसिडेंट, तो ये रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट बाउंडेड बाय टू पैरेलल रेज. अब ये हो गए पी ए क्यू बी, ये पी क्यू आर एस लिख सकते हैं, ठीक है. डी आर एंड सी एस, पी क्यू आर एस. डी आर देखो, ये सी एस. लेबलिंग में आप इधर यस इधर आर कुछ भी लिख सकते हैं. तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. तो केयर शुड बी टेकन, वेव फ्रंट एंड लाइट रेज एक दूसरे को क्या होने चाहिए, राइट एंगल. इधर भी क्या होना चाहिए, राइट एंगल. ठीक है. जितना हो सके उतना परफेक्ट ड्रा करने की कोशिश करो. जब डायग्राम बना दे, जितना ऐसा सरफेस को, इस सरफेस को क्लोज ड्रा करेंगे उतनी डायग्राम ठीक से है. अब जैसा नॉर्मल को क्लोज ड्रा करते हैं तो डायग्राम बनने में तो डिफिकल्टी होगी. तो ट्राई टू ड्रा द डायग्राम, ट्राई टू ड्रा दिस वेव फ्रंट एज क्लोज एज टू दिस सरफेस. ओके, एज क्लोज एज पॉसिबल टू दिस सरफेस. अब क्या करने वाले हैं, ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंस विथ नॉर्मल. करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे इज दिस, ये रिफ्लेक्टेड रे इसका. एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर. वी कैन ड्रॉ अनदर नॉर्मल एट द पॉइंट सी, बट सिंगल नॉर्मल इज सफिशिएंट. Not necessary to draw the normal again at the point C. ठीक है. अब रिफ्लेक्शन प्रूव करना मतलब क्या, we have to prove I equal to R. ये प्रूव करना. ठीक है. ये प्रूव कर देते हैं तो फिर we have proved the first law of reflection. अब देखो फिर इसे एक्सप्लेन, एग्जाम में आपको इसका डिस्क्रिप्शन क्या लिखना है, कैसे शुरू कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, कंसीडर अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स एक्स डैश. सपोज दैट अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी बाउंडेड बाय टू पैरेलल रेज पी ए एंड क्यू बी allowed to incident on the plane surface x x dash. As soon as wave front reaches the point A will act as a secondary source of light, sending out secondary waves in the previous air medium. In the time t, wave front reaches from B to C. The distance BC equal to, by the definition of speed, distance equal to speed into time. So taking BC distance as radius, point A as center, draw the hemisphere around the point A. This hemisphere will represent secondary wave from that point A. Draw the tangent CD to this hemisphere. This tangent CD will represent reflected wavefront for this incident wavefront AB. ये बन गई reflected wavefront. AB and CD की साइज सेम ही होनी चाहिए. थोड़ा इधर कंपास नहीं तो थोड़ा कम ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन आपके पास कंपास है तो परफेक्ट आना चाहिए. ठीक है. थोड़ा वेरिएशन चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं. ये सक्सेसिव पोजीशन है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट के सक्सेसिव पोजीशन है. ड्रॉ द नॉर्मल एट द पॉइंट ए. I is the angle of incidence, R is the angle of reflection. We can draw normal at the point C also. इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो we want to prove I equal to R. So from geometry of figure,
फिगर की ज्योमेट्री से देखो, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव मतलब फर्स्ट लॉ क्या प्रूव करना है, I इक्वल टू आर, ये प्रूव करना है फ्रॉम फिगर। I मतलब इंसिडेंस एंगल, ये क्या है, रिफ्लेक्शन। फ्रॉम फिगर PAM एंगल PAM, पहले लिख लेते हैं PAM क्या है, एंगल PAM इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल MAD ये क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों क्या दिखा रहे हैं, सेम। तो यहाँ से स्टार्ट करो, PAM के अंदर क्या ऐड करते हैं, तो 90 बनना चाहिए, PAM प्लस MAB, ये पूरा एंगल आपको 90 दिख रहा है, ठीक है। तो PAM प्लस एंगल MAB, ये देखो 90 डिग्री। तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री, सपोज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब फिर से इस सिंबल को इधर, ये सेकंड जो एंगल लिखा है, सेकंड टर्म, उसे अगले स्टेप के लिए फर्स्ट टर्म लिखो। तो MAB, इसमें क्या ऐड करना है 90 बनने के लिए, MAB प्लस BAC, ठीक से देखो ये पूरा 90, तो MAB प्लस BAC, तो एंगल BAC इज इक्वल टू, फिर से क्या बन रहा है 90, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन के राइट साइड इक्वल है, तो इक्वेटिंग द LHS ऑफ इक्वेशन 1 and 2, तो इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 and 2, ओके। Equating equations 1 and 2, we get, अब दोनों के राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड को इक्वेट कर दो, ये में भी कैंसिल होने वाला है, दिस साइड इक्वल टू दिस, ऐसा करते हैं, तो ये में भी ये कॉमन कैंसिल, PAM इक्वल टू क्या आ रहा है, BAC, PAM एंगल PAM इक्वल टू एंगल BAC, दैट इज इक्वल टू R, वो क्या है, तो I, ठीक है। नाउ लेट अस गिव दिस इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करो, MAD से। नाउ एंगल MAD प्लस MAD के अंदर क्या ऐड करते हैं, DAC प्लस DAC इक्वल टू, फिर से क्या 90, इक्वेशन नंबर 4। DAC फिर से इधर लिख दो। अबे देखो DAC के अंदर इसे ऐड कर दो, क्योंकि ये 90 है, तो इसके और इसके एडिशन क्या होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। तो DAC प्लस DCA, DAC प्लस DCA इक्वल टू क्या, 90। तो ये बन गया इक्वेशन 5, ओके। तो सिंपल क्या है, तो यही सेकंड टर्म को इधर अगले स्टेप में फर्स्ट लिख दो, और उसमें क्या ऐड करना है, DAC के अंदर DCA, तो इन दोनों के एडिशन 90, क्योंकि इधर 90, ठीक है, ये 90 मतलब ये भी 90 इस साइड से। इक्वेटिंग फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ को इक्वेट कर देते हैं। Equating equations 4 and 5, 4 and 5, then we get DAC cancel, तो क्या बनेगा, एंगल MAD is equal to एंगल DCA, DCA क्या है, R, ठीक है। तो ये 4 3 नंबर
4 5, ये बन गए 6 नंबर का इक्वेशन। ठीक है, ये इसकी जरूरत है हमें आगे। अब DCA, अब फिगर की थोड़ी ज्योमेट्री यूज करते हैं। ये DCA, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देखो कॉमन बेस है, AC कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए, बेस कॉमन है। साइड 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 टेस्ट यूज करो, साइड एंगल साइड टेस्ट यूज करो, दोनों टेस्ट अप्लाई हो रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट एंगल के जो टेस्ट होते हैं, साइड 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 क्या है, साइड एंगल साइड, वो भी टेस्ट अप्लाई करो तो भी दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब DCA, ये बन गया DCA। ठीक है, उससे सिमिलर क्या आने वाला है, DC एंगल को सिमिलर BA से आ रहा है क्या, चेक करो। ये देखो DCA ये एंगल और BAC एंगल दोनों क्या आने वाले, इक्वल आने वाले, बिकॉज बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो BAC एंगल एंड DCA एंगल बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। तो फ्रॉम फिगर, अब आगे लिखना है तो फिगर को रफ करना जरूरी है। ये ऊपर का पार्ट रफ कर देता अभी। ठीक है, फ्रॉम फिगर right angle triangle ABC congruent to right angle triangle ADC, therefore angle DCA, therefore angle DCA equal to angle BAC। ओके, लेकिन DCA क्या है, R है, बराबर। BAC क्या है, I। So therefore angle R equal to angle R। This is the, ये क्या है, this is the first law of reflection। Remaining two laws can be easily proved from the figure. From figure, incident ray, reflected ray lie on opposite side of normal. All these three, incident ray, reflected ray and normal at the point of incident, all these three are in single plane। ये बन गई दो लॉस। यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे lie on opposite side of normal, all these three, incident ray, reflected and normal at this point of incidence, all the three are in single plane। Okay, so this is the explanation of reflection of light या फिर reflection of plane wavefront on the basis of Huygens wave theory। ठीक है, अब जो पार्ट यहाँ से हमने लिखा है मैथमेटिकल, लेकिन डायग्राम का डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको खुद को लिखना है। एक बार मैं फिर से आपको बोल देता किस तरह से लिखना है। पहले डायग्राम बना के एक्सप्लेनेशन क्या लिखना है। पहला पॉइंट, कंसीडर प्लेन वेवफ्रंट AB बाउंडेड बाय टू पैरेलल रेज PA एंड QB। As soon as wavefront reaches the point A will act as a secondary source of light according to Huygens principle। In the time t when wavefront reaches from B point to C, in the same time t, the secondary wave starting from A will have to cover same distance BC equal to CT। So taking distance BC equal to CT as radius, A point as center, draw the hemisphere around the point A। A tangent CD drawn to this hemisphere, tangent CD drawn to this hemisphere will represent reflected wavefront bounded by two parallel rays DS and CF। या D इधर R लिखो, इधर S लिखो, सिंबल ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं। ड्रॉ द नॉर्मल एट द पॉइंट A
एंगल PAM इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल MAD इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. देन फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर PAM प्लस क्या MAB बन गया 90 डिग्री, MAB प्लस BAC ये टोटल बन गया 90. दोनों को इक्वल करते हैं तो ये कैंसिल होने वाला है, ये इक्वल आएगा. ठीक है, ये इक्वल आ गया. PAM मतलब इंसिडेंस एंगल इक्वल टू BAC. अब सेकंड क्या करना है आपको, यहाँ से कंसीडर करना है इसमें रिफ्लेक्शन एंगल से. तो रिफ्लेक्शन एंगल कौन सा है, ये देखो BAC. ओके, हाँ, तो ये नया है. तो पहले हमने PAM कंसिडर किया था, MAB ये हो गया, ये तीसरा आया इक्वेशन. नाउ MAD प्लस MAD. यहाँ पे गलत लिखा है रिफ्लेक्शन एंगल, यहाँ पे ये देखो इधर लिखा है ये रिफ्लेक्शन एंगल, ये आगे कॉन्ग्रुएंट के लिए मार्किंग की थी, ये रिफ्लेक्शन एंगल. तो पहले इंसिडेंस से शुरू करो, बाद में यहाँ पे आने के बाद रिफ्लेक्शन एंगल से शुरू करो MAD से. तो MAD के अंदर क्या DAC ऐड कर दो 90, DAC के अंदर DC ऐड करते तो 90, दोनों को इक्वल करते हैं तो ये कैंसिल हो रहा है, MAD इक्वल टू DC है. लेकिन DC है सेम है BAC, ये DC है ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है सेम, इसलिए वो लाइन जो दिख रही थी ना पहले वो उसी के हिसाब से आ रहा है. अब दोनों ये DC है मतलब क्या है तो दिखा इधर R है, BAC क्या है तो R है, तो R इक्वल टू I. दिस इज द फर्स्ट लॉ. और सेकंड एंड थर्ड लॉ तो डायग्राम से आपको सिर्फ लिख देना है क्या, फ्रॉम फिगर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे lie on opposite side of normal. All these three incident ray, reflected ray and normal at the point of incident are in the same plane. So this is the explanation of reflection of light on the basis of against wavelength. Then after refraction, उसके बाद रिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं.